स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਮਿਥ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੌਪਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੌਪਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਜੋਈਆਂ ਨੇ। Daman, Hello. how are you? I'm good. How are you? I'm also good. So first of all, congratulations. Your book has been published, The Myth of Being a Topper. Thank How you. are you feeling? I'm feeling really proud that my book has been published and it is going to launch in this school, in the premises. So book की बात करने से पहले ना हम सबसे पहले आपके पास आते हैं। Sure. अपने बारे में कुछ बताओ। So my where do name you is belong? Damanpreet Kaur and मैं खेड़ा गज्जू विलेज की रहने वाली हूँ, नियर मानकपुर. This book has been an amazing journey has been there writing this book. इस स्कूल में स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल में आई हैव बीन फॉर अबाउट 15 years एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज कुछ बेसिक्स ऐसे होते हैं जो बुक लिखने से पहले आपको पता होने चाहिए, राइटिंग फ्लो, वो सारी चीज़ें यहीं से आई हैं. तो बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक्स आई हैव बीन एबल टू डू दिस थिंग. Okay. Can you just give a brief on your journey or struggles you faced while writing this book? So writing this book while in my academics, while studying, so the first struggle was obviously studying because I have to go side by side with writing my book, and on the other hand I have to study and excel my academics too. So and I have also been there in many competitions and curricular activities, anchoring, hosting shows, so that was also part of all this journey. And because of it, it has been really difficult to manage both of the tasks. This is the only thing which I have faced writing this book. And another thing is the sketches which are there in this book right here. Yeah. Like these all sketches have been drawn by me, and these sketches are have taken a lot of time, consumed a lot of time. So I guess these are the main struggles during the book. Okay, can you just tell me what is that motivated you that I'll write a book, yeah, I'll surely write a book on this topic? What was that? So that's a very long journey, but let me shorten it for you. In briefly, I was in 6th standard, so मैंने ये सोचा था कि I will be writing a book. So I took just a notebook and decorated the first page writing the great Indians. So I studied a lot about what I have to write in that book, and then I wrote about Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, APJ Abdul Kalam. I halted there. I said, what series am I going through? कि कर क्या रही हूँ? Like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, APJ Abdul Kalam immediately. तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं. Then I thought ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं अपनी. तो उसी कॉपी के बाद मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी स्टार्ट की. मैं चाइल्डहुड फेज पे थी, लिख रही थी, and I said, who will be interested in reading the autobiography of a 12 or 13-year-old girl जब मैं 7th standard में. तो ये सब सोचते सोचते मेरा ये जो बुक वाला ड्रीम था वो वहीं पे खो गया था. राइट, लाइक मैं स्टडी कर रही थी, बस स्टडीज़ तक रह गया था एंड कोई ऐसा थॉट दोबारा दिमाग में नहीं आया, वहीं रुक गया था सारा कुछ. एंड जब मैं 10th में हुई तो आई वॉन्ट टू मैंसन कि हमारे जो IT के टीचर उस टाइम आए थे, परम सर, he told about his book, The Peri-Maroos and the Maroon Stone. तो उस बुक से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि I also wanted to write a book. तो मुझे वो बुक लिखनी है. I wanted to write something. मुझे कुछ ऐसा लोगों के पास पहुंचाना है जो मेरे पास है. And then I started writing this book. तो इस बुक को like 10th में मैंने 2 months लगा के एक बहुत ही कैजुअल सा ड्राफ्ट बना के I published it on Kindle. But I thought कि उसकी वहाँ पे कोई रीच ही नहीं होगी. And then in 11th I awaken again and I thought कि नहीं, इसको फिर से re-edit करना है. And then I edited it with the help of Abhishek sir, and then I published it. And it took really efforts, time and everything to manage this. तो basically इस book में ये myth को decipher किया गया है कि
टॉपर बनना ना ही बहुत ज़्यादा इजी है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज टॉपर बनने की भी कुछ स्ट्रगल्स होती हैं. एवरीथिंग डजंट रिमेन ईजी वाइल बिकमिंग अ टॉपर. एंड कई होते हैं जो फेलियर से डर जाते हैं, वो तो ही टॉपर नहीं बनना चाहते. कई होते हैं जो कहते हैं कि वो वैसी जेलसी फैक्टर के कारण कि जो क्लास का टॉपर है उससे जेलसी के कारण नहीं आगे बढ़ पाते. सो ये जो बुक है, दिस डिकोड्स द मिथ ऑफ बीइंग अ टॉपर, कि एक टॉपर के बनने के क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं. बेसिकली जैसे अब आपने बोला कि टॉपर बनने के पीछे या इस बुक को लिखने के पीछे बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं. सो बीइंग अ टॉपर, आप जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनको उनके पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं कि आप पढ़ो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उनको आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहोगे इस बुक के दौरान? बेसिकली हर एक इंडिविजुअल अलग होता है. तो जो टॉपर्स हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, वो बस प्रॉपर टेक्निक्स लगाते हैं स्टडी करते हुए. लाइक जो ये कंसेप्शन बन जाता है बच्चों का, पेरेंट्स का, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो भी यही मान के चलते हैं कि अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे या रात को लेट सोएंगे और पढ़ेंगे तो बन जाएगा. बट द थिंग इज़ कि हमें अपने पूरे दिन में से ना एक प्रोडक्टिव आवर, एक प्रोडक्टिव टाइम निकालने की ज़रूरत है. उस टाइम पे स्टडी करना है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम या तो आजकल फ़ोन स्क्रॉलिंग पे लगा देते हैं या फिर बाहर घूमने में, फ्रेंड्स के साथ बात करने में, बस. तो मेन थिंग है कि प्रॉपर टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए, जो इस बुक में मैंने प्रॉपरली मेंशन की हुई हैं कि क्या टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए जो एक स्टूडेंट को वेदर एवरेज वेदर टॉपर टू अपना बीइंग अ टॉपर, वो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, जो उसके मार्क्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उसको मेंटेन कैसे करना है, वो प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन है. या बहुत अच्छी बात है. सो आप अपनी बुक द मिथ ऑफ बीइंग अ टॉपर के बारे में कुछ बताओ कि इसमें आपने क्या क्या डाला है. बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डाली हैं कि उसे हर एवरेज, मीडियम एंड जो टॉपर है, उस हर टाइप के स्टूडेंट को थोड़ी बहुत ही इंस्पिरेशन या मोटिवेशन. श्योर. ये जो बुक है, ये दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स और द टॉपर्स और द एवरेज स्टूडेंट्स ना, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि ये बुक टीचर्स, पेरेंट्स, हर किसी के लिए है. इसमें टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए एक व्यू है जो एक टॉपर का. लाइक दिस इज़ माई ओन व्यू कि एक टॉपर की लाइफ बिल्कुल ईजी नहीं होती है. अगर उन्हें कोई कहीं बाहर से प्रेशर नहीं मिल रहा तो वो सेल्फ प्रेशराइज हो जाते हैं कि नहीं, मेरे इतने मार्क्स पहले आए थे, अब 1 मार्क्स कम हो गया. वो एक आधा मार्क्स भी उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल देता है कि मे बी मैंने स्टडी नहीं किया. तो इस बुक में मतलब कुछ मेथड्स हैं, और इस बुक में जो मेन चीज़ मैंने अपनी जर्नी के रिगार्डिंग सीखी है वो है फेलियर्स. कि जो फेलियर्स हैं वो पार्ट है. लाइफ अप्स और डाउन से भरी हुई है. लाइफ के अंदर कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे. वो स्ट्रेट पाथ नहीं है. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. कभी कांटे लगेंगे, बट द थिंग इज़ कि उन कांटों को निकाल के आगे बढ़ना. तो उस जो भी वो हमारा फीट है उसको क्लाइंब करना, वहाँ पे पहुँचना, एंड टॉपिंग अप इन एवरी फील्ड. बेसिकली टॉपर बनने का जो मेन मंत्र मुझे लगता है वो है बीइंग अ लर्नर एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेज. जो कर रहे हो लाइफ में, अपनी हर एक मोमेंट से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. वी शुड बी थैंकफुल टू ईच मोमेंट विच कम्स टू आवर लाइफ, क्योंकि अगर एक भी मोमेंट मिसिंग होती तो आज हम जहाँ हैं हम वहाँ पे नहीं होते. या राइट. सो यू आर टॉपर, राइट. आपने 10th में 95% लिए, है ना. तब भी आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स ली. पहले भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने बहुत किया. तो बीइंग अ टॉपर आपको खुद क्लास में कौन कौन से स्ट्रगल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, आप बताओ. बेसिकली मुझे नहीं लगता कि मैंने क्लास में ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं. दिस इज़ ऑल दैट द स्कूल हैज़ बीन ऑलवेज कोऑपरेटिव, ऑलवेज कोऑर्डिनेटेड विद मी. इनफैक्ट आई गेस कि बहुत ज़्यादा एक कह लो अटेंशन मिलती है हर एक चाइल्ड को, एवरेज स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग, टॉपर को उसके अकॉर्डिंग. तो हर एक चीज़ स्कॉलर्स में बिल्कुल सारा कुछ अवेलेबल है. एंड आई वुड बी थैंकफुल टू जोशी मैम एंड सर एंड भारती मैम फॉर making this all things available, to choosing the best faculties for the school. All my teachers are responsible for writing this book, because अगर उन्होंने मुझे ये सारे बेसिक्स राइटिंग के ना सिखाए होते
तो मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस ऑल माई फीलिंग्स इन टू दिस बुक। या राइट। सो अब इस बुक में है ना, मैंने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा, तो साइड में ना मुझे ये स्केचेस मिले, दे वर क्वाइट अट्रैक्टिव राइट, कि आप हाथ से उसे बना रहे हो। ये स्केचेस को बनाना, प्रेजेंट करना अपनी फीलिंग्स को इस बुक में, कैसे, क्या मोटिवेट? बेसिकली जहाँ तक मैंने देखा है, मैं जब बुक्स पढ़ती थी तो मुझे बिना स्केचेस की बुक बहुत अनइंटरेस्टिंग लगती थी। लाइक देख कर ही नहीं, ये वाली नहीं पढ़नी मुझे, बिकॉज उसमें नहीं होते इलस्ट्रेशंस नहीं हैं। सो आई मेड श्योर कि बच्चों को भी बुक पसंद आए। तो ये इलस्ट्रेशंस मैंने खुद बनाए ताकि एवरीबडी शुड फील लाइक कि हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे जो स्केचेस हैं उसके कंसिक्वेंट पेज पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो स्केच को डिपिक्ट कर रही हैं। लाइक पीपल विनिंग, जैसे इसमें जो स्टोरी है उसमें स्टार्टिंग में देयर इज़ अ लिटिल गर्ल हु इज़ विनिंग अ फर्स्ट प्राइज़ इन हर स्कूल। सो ऐसे करके मैंने वो सारी इलस्ट्रेशंस यहाँ पे बनाई जो इस बुक में डिपिक्ट कर रही हैं चीज़ें, स्टडिंग, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ग्रुप स्टडिंग, एवरीथिंग। द मिथ ऑफ बीइंग अ टॉपर है ना, इसमें आपने ना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, टॉपर्स को टिप्स दिए, प्रोज एंड कॉन्स बताए टॉपर बनने के, है ना। तो अगर इस बुक को आप हमारे दर्शकों को 2 मिनट समरी देना चाहोगे तो कैसे दोगे? श्योर। इसको समराइज़ करने के लिए मुझे बस इतना कहने की ज़रूरत है कि जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं एक टॉपर के रिगार्डिंग, कि वो बहुत देर रात तक पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टडी आवर्स देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हमें ध्यान में रखने चाहिए ड्यूरिंग आवर स्टडी सेशन। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, विच इज़ अ इफ़ेक्टिव वे इफ़ आई टेल यू, बट ज़रूरी नहीं है। हमें अगर जब भी हम स्टडी कर रहे हैं उस रिगार्डिंग हम वो मेथड्स, टेक्निक्स लगाएं जो मैंने इस बुक के अंदर मेंशन किए हैं, देन इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो इससे काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें ये चीज़ पता लग जाती है कि उन्हें स्टडी करना कैसे है। ये बुक एक सेल्फ हेल्प बुक है, तो ये ग्रोथ माइंडसेट देती है, ये ऐसा माइंडसेट दे रही है जो लर्निंग के लिए ज़रूरी है। एंड अगर कोई स्टडी को एन्जॉय करने लग जाए तो उससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। Thank you so much, Daman. You are giving very important tips for today's generation who is running after being a topper, right? So मैं कुछ और भी कहना चाहूँगी कि ये जो बुक है, दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू ईच मोमेंट इन माई लाइफ, जैसा मैंने कहा। एंड इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स वो हैं जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, जब मेरे टीचर्स ने मुझे एकेडमिक्स के लिए इंस्पिरेशंस दी हैं, एडवाइसेस दी हैं, सजेशंस दिए हैं। When my parents put me in such a magnificent school, Scholars Public School, जब इस स्कूल के अंदर आई तब से लेके अब तक मेरी जर्नी जो रही है, दैट इज़ आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ दैट, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। इफ़ आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है तो फिर यू आर नथिंग। एट टाइम्स हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही एजुकेशन है, बिकॉज़ एक इंसान जितना ज़्यादा एजुकेटेड होता है वो उतना ग्राउंडेड रहता है। तो आई एम थैंकफुल कि मैं इस स्कूल में आई। आई एम थैंकफुल कि जोशी मैम हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर अस, ऑलवेज हैव कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटेड विद अस, have chosen the best faculties here, and the teachers have always accommodated the students to give them courage. And yes, so first thanks goes to the school and all my teachers, my parents and my friends. Okay, so you know Daman, टॉपर बनने के टिप्स ना सब दे देंगे, पूरी दुनिया दे देगी, गूगल दे देगी, यूट्यूब दे देगी, बट टॉपर बनने के पीछे जो मिथ्स होते हैं ना वो कोई देता है। आपने क्या किया है, आपने ना इस टॉपिक पे एक रोशनी डाली है कि एक टॉपर, हाँ ठीक है टॉपर है, बहुत अच्छी बात है, बट उसके पीछे मिथ्स क्या है? The feelings, the misconceptions, everything has been added in this book. Right. So at last the वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो इस बुक को पढ़ना चाहती हैं। मैंने पढ़ ली, बहुत अच्छी बुक है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो इसे पढ़ना चाहती हैं, तो हाउ टू बाय दिस बुक? सो दिस बुक इज़ ईजीली अवेलेबल ऑन Amazon and Flipkart. You can buy it from there, and it is really an amazing book. This book should be definite read by teachers, parents and the students. I'm sure your friends are going to get help from this. Yeah. Thank you so much, Daman, for attending this. This is my pleasure to be here.
थैंक यू सो मच।